So based on this figure, let we clear the uh, required assumptions for the composite wall. That is, first, following assumptions are made in the analysis of heat conduction through a composite wall. So numbers of assumptions are required for the composite wall, that in which first steady state conditions prevail. So that means जो ये हमारा फ्लूइड है that is in steady state condition. Okay, हीट फ्लो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, steady state condition पे हो रहा है. At that means if we are trying to heat transfer for a constant temperature, okay, steady state means that is constant temperature. Thermal conductivities of the slab K1, K2 and K3 are constant and not changing the with temperature. Okay, generally the base पे क्या होता है कि if we are changing the temperature or increase the temperature, so the thermal conductivity are increasing or decrease. Okay, so both cases are possible. So in here our assumption is second most important is that is thermal conductivity of all slab K1, K2 and K3 are constant during the operation and there is no change with temperature. Okay, third one is heat flow in one direction only, in other words the direction x. Okay, ये जो हमारा heat flow है वो only that can be flow only one direction, that is x direction. Okay, so ये हमारा assumptions है, क्योंकि हीट फ्लो अगर हम करते हैं किसी भी सब्सटेंस और मटेरियल के अंदर तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि हमारा जो हीट कंडक्शन है वो कोई एक ही डायरेक्शन में जाए. बट लेट वी कंसिडर कि हमारा जो हीट कंडक्शन है वो ओनली वन डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज एक्स डायरेक्शन. फोर्थ पॉइंट, हीट ट्रांसफर एट बाउंड्रीज, in other words say x is equal to x0 and x is equal to x3 at boundary line, okay, is given by Newton's law of cooling with heat transfer coefficient h0 and h3 respectively. Okay, so Newton's law of cooling क्या कहता है, if जो मतलब क्या होता है, Newton's law of cooling said it state that कि ये जो rate of heat transfer हो रहा है उसका जो cooling है, okay, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर निर्भर करता है, दैट मीन्स उसके ऊपर डिपेंड रहता है, दैट इज ऑन एम्बिएंट टेम्परेचर. ओके, और रूम टेम्परेचर पे. सो दिस इज कैन बी यूज, ओके, फॉर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट H0 एंड H3. ओके, सो लेट वी हैव टू फाइंड heat input and heat output at that particular point of delta x thickness. Okay, so with the above assumptions, let Qx be the heat flux flowing in the x direction. Okay, जो हमारा heat flux है as we show in figure कि जो हमारा Qx है वो क्या है, heat flux है. Let us consider a cell at x end of thickness x, उसकी thickness x है, for applying heat balance in the region 1. So there is no heat generation. Okay, at that point there is no heat generation. Rate of heat in at surface x minus rate of heat out at surface x plus delta x equal to 0. Okay, यहाँ पे delta x आएगा. So similarly जैसे हम input minus output करते हैं, okay, so similarly पर यहाँ पे भी यही होगा कि rate of heat input minus rate of heat out. Okay, so rate of heat in कहाँ पे हो रहा है, फर्स्ट ऑफ रीजन 1 में, तो हीट फ्लक्स एट Qx पॉइंट x पे. ओके, लेट आई शो इन फिगर कहाँ पे हो रहा है, दैट इज यहाँ पे, ये जो पॉइंट है बराबर, ये यहाँ पे इनपुट हो रहा है और यहाँ से आउटपुट हो रहा है. सो दिस इज द फंडामेंट ऑफ. So next, so what happened here, Qx at x into width into height minus Qx, but कहाँ पे x plus not x plus delta x, यहाँ पे delta x आएगा, into WH equal to 0. Okay, as per I told you our procedure of finding the rate. ओके, तो उसका जो प्रोसीजर सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो उसका W
एच और डेल्टा एक्स से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे. डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय डब्ल्यू एच डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0. यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा एक्स आएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा टर्म, इसे हम डब्ल्यू एच और डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच कैंसिल हो जाएगा और डेल्टा एक्स है तो इसके पास डेल्टा एक्स नहीं है तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स. सिमिलर टू यहाँ पे भी क्या आएगा, डब्ल्यू एच विल बी कैंसल एंड डेल्टा एक्स रिमेनिंग, तो उसके नीचे क्या क्या आएगा, डेल्टा एक्स. तो ये दोनों के नीचे डेल्टा एक्स है तो डेल्टा एक्स कॉमन ले सकते हैं. ओके, सो रिमेनिंग क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स और उसके नीचे क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स. ओके, इक्वल टू 0. तो ये जो पूरा टर्म है वो किस तरह से हो जाएगा, लुक लाइक दिस. और यहाँ पे क्या है, टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 क्यू ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स एक्स प्लस डेल्टा एक्स एंड डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इक्वल टू 0. तो ये तो हमारा कौन सा इक्वेशन बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू एक्स ओके विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. જેવી રીતે આપણે બધી થિયરી ઓલ થિયરીની અંદર આપણે જોઈએ છે એવી રીતે આનું પણ શું થઈ જશે, આ ઇક્વેશન થઈ જશે. એન્ડ ધેન આફ્ટર as our procedure we have to integrating this equation. Okay, so integrating the equation number this equation को आज equation integration करशु. So we get integrating equation 7.6. so qx is equal to constant. Okay, qx is equal to constant equal to we consider qx is equal to q0. okay, અહીંયા શું રહેશે, qx is equal to constant એનું ઇન્ટિગ્રેશન એ થશે. સો ઇટ ઇક્વલ ટુ क्या हो जाएगा, हीट फ्लक्स एट द सरफेस ऑफ x इक्वल टू x0. ओके, हीट फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे कैसे, क्योंकि qx is equal to 0 दैट मीन्स q0 हो जाएगा, qx 0 qx बराबर 0 है तो इट मीन्स q0 हो गया इसकी वैल्यू. ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हीट फ्लक्स एट द सरफेस x इक्वल टू x0. ओके, दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर द ऑल 3 लैब्स. तीनों लैब के लिए, तीनों जो डिफरेंट लेयर है उसके लिए एप्लीकेबल है. सो qx इज इक्वल टू q0 विल बी कंसिडर. नाउ अप्लाइंग द फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन फॉर ऑल 3 लैब. ओके, फूरियर्स लॉ वी नो दैट. व्हाट इज द फूरियर्स लॉ, फूरियर्स लॉ स्टेट दैट ओके कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय by conduction through a uniform material is directly proportional to the area nominal to the heat transfer and heat transfer in the direction of heat transfer. Okay, temperature gradient in the heat transfer direction. Okay, so that means q is equal to minus ka dt upon dx. so heat flux क्या हो जाएगा, q0 for region 1. that means for layer 1 के लिए क्या हो जाएगा, layer 1 q0 is equal to minus k1. different layer having the different thermal conductivity, that is k1 k2 and k3. okay, that is k1 dt upon dx similar to for region 2, that means layer 2 and similar for the layer 3. okay, where k1 k2 and k3 are the respective thermal conductivity of these 3 slabs are constant. okay, now integrating this equation over the thickness of each slab. टेम्परेचर को क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टेम्परेचर को हेड रखना है, dx को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करना है. ओके, और k सिमिलर फॉर दिस 3 इक्वेशन और k को यहाँ पे क्या करना है, नीचे इक्वल टू की सामने की साइड रखना है. तो dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन k इंटू q0 इंटू dx हो जाएगा. ओके, सो दिस फंडामेंटल आर यूज. सो हियर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर की रेंज कहाँ से, T0 टू T1 माइनस dt बराबर, माइनस ऑल्सो कंसिडर दैट. सो T0 टू T1 dt इक्वल टू q0 बाई k1 इज कॉन्स्टेंट एंड थिकनेस और जो उसकी लेंथ है. ओके, तो उससे हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन. सो दैट इज x0 टू x1 into dx. वंस अगेन आई रिपीट. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये इक्वेशन है सिमिलरिटी
तीनों इक्वेशन में से इसमें क्या करना है, dx को इक्वेशन का मेन बनाना है, तो दैट इज क्या हो जाएगा dx। ओके, तो dx को यहाँ पे मल्टीप्लाइड करेंगे। ओके, तो dx यहाँ पे हो जाएगा q0 इंटू dx एंड माइनस k3, तो माइनस k3 यहाँ पे बड़ा इक्वल टू में है, तो उसको यहाँ पे इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -1 अपॉन k हो जाएगा ना। सो दिस फंडामेंट यूज फॉर ऑल दिस थ्री के लिए। ओके, नाउ फॉर ए रीजन 1, तो इसमें क्या हो जाएगा t0 से t1 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा फॉर अप्लाई फॉर दिस थ्री लेयर्स के लिए अप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन t0 माइनस t1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मीन्स t1 माइनस t0। ओके, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या हो जाएगा t0 माइनस t1 हो जाएगा। ओके, एज इट इज q0 अपॉन k1, और इसका क्या हो जाएगा x1 माइनस x0। ओके, सिमिलर टू फॉर रीजन 2 के लिए क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा t1 टू t2, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम t1 टू t2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x1 से x2 हो जाएगा। सो उसमें क्या हो जाएगा t1 से t2, दैट मीन्स t2 माइनस t1 होगा, और माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा t1 माइनस t2। ओके, सिमिलर टू यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। सो सेम फॉर द रीजन 3, एंड वी गॉट 3 इक्वेशन फॉर layer 1, 2 and 3. Okay, now apply the Newton's law of cooling at the surface x equal to x0 and x equal to x3. Okay, so Newton's law of cooling state that for heat transfer at a surface x equal to x0, what is the value of heat transfer coefficient, that is q0 equal to h0 into ta minus t0. Okay, we know that the हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का जो कंडक्शन के हिसाब से जो इक्वेशन है वो क्या है q0 इज इक्वल टू h0 इंटू TA माइनस t0। ओके, एट सरफेस पे, तो इसमें से TA माइनस t0 को TA ने करता बनाओ तो सूत्र से q0 अपॉन h0। ओके, सो दैट इज फॉर सरफेस। ओके, x इक्वल टू 0, एंड सिमिलर टू फॉर आउटर सरफेस, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आउटर टेम्परेचर क्या है T3 माइनस TB। ओके, तो सिमिलर टू यहाँ पे क्या हो जाएगा Q0 इज इक्वल टू H3, Q0 इज इक्वल टू H3 TB या T3 माइनस TB। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा T3 माइनस TB, तो दैट मीन्स उसके हिसाब से क्या हो जाएगा T3 माइनस TB इज इक्वल टू Q0 अपॉन H3। ओके, ये इक्वेशन आपको याद करना है फॉर हीट ट्रांसफर के हिसाब से। तो हीट ट्रांसफर का इज है वो क्या है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओके, सो q0 इज h0 इंटू ta माइनस t0। नाउ वेर h0 एंड h3 आर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये तीनों हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है ऑफ द फ्लूइड A and B respectively. Adding these 5 equation 7.6 to 239 and 7.66 and we get, तो ये इक्वेशन कहाँ पे पुट करना है हमको, मतलब ये पांचों इक्वेशन का क्या करना है एडिशन करना है। दैट मीन्स ये इसका एडिशन करो t0 माइनस t1 इक्वल टू q0 अपॉन k1 x1 माइनस x0। ओके, प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 7.64 प्लस इक्वेशन नंबर 7.65 प्लस इक्वेशन नंबर 7.66। ओके, सो then after simply you have to carry out TA minus TB value. Okay, TA minus TB, then q0 is in all above equation are common, so q0 will be let them common q0 and remaining equation is look like this. ओके, तो ये जो हमारा फाइनल इक्वेशन होगा वो क्या मिलेगा, सबको एडिशन करने के बाद ये मिलेगा। ओके, सो इन अबो इक्वेशन सिंक्रोनाइजिंग दिस टर्म, सो उसके लिए क्या करना है q0 को हेड ऑफ द इक्वेशन, सो q0 इज इक्वल टू ta माइनस tb अपॉन
इसके अंदर क्या हो जाएगा 1/H0 और 1/H3 को आगे लिख दिया है प्लस, और ये तीनों ये जो इक्वेशन है बराबर, उसको ith कंपोनेंट के लिए उसको क्या कर दिया समेशन दे दिया, समेशन फ्रॉम कंपोनेंट i इज इक्वल टू 1 to 3 के लिए। और उसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, तो x of i माइनस x of i माइनस 1 और डिवाइड बाय k, यहाँ पर i की वैल्यू क्या है 0 से 1 से लेके 3 तक, तो उसको लिख सकते हैं ki। ओके, वंस अगेन आई रिपीट, Q0 फ्रॉम हियर, Q0 इक्वल टू क्या होता है TA माइनस TB अपॉन 1/H0 और H3 को आगे लिख दिया, और इसका इक्वेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए क्या कर दिया समेशन दे दिया i से लेके 3 तक, तो वो क्या हो जाएगा xi माइनस 1 अपॉन ki। ओके, सो इक्वेशन 7.68 कैन बी रिटन आइदर इन हीट फ्लक्स, ओके, हीट फ्लक्स जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड, और इन द हीट फ्लो Q joule per second. Okay, let us now define overall heat transfer coefficient U. Overall heat transfer coefficient U, similar for heat transfer coefficient and now similar for overall heat transfer coefficient. So that means Q0 is equal to U TA minus TB. Overall का क्या कहाँ से कहाँ तक होगा Q0 overall, that means starting से लेके end तक इसका U। ओके, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट TA माइनस TB, स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड A और टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड B। ओके, और उसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू U और उसका विथ एंड लेंथ, विथ एंड हाइट TA माइनस TB। ओके, सो ये दो इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 7.69 एंड 7.70, सो नाउ वी गेट, तो ये दोनों में से हम क्या करेंगे इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे, तो क्या हो जाएगा तीनों में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपैरिजन करना है बराबर, ये वाला इक्वेशन को, पर ये इक्वेशन इन दिस इक्वेशन मुझे क्या करना है, मुझे u की वैल्यू चाहिए अगर, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी u इज इक्वल टू Q0 डिवाइड बाय TA माइनस TB हो जाएगा। ओके, नाउ u की वैल्यू हमें कहाँ पे पुट करनी है इन दिस इक्वेशन। ओके, तो इसकी जगह पे हमें क्या करना है इंट्रोड्यूस करना है u, तो u की वैल्यू कहाँ से आई, तो u की वैल्यू 7.69 से होगी, सो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q0 अपॉन TA माइनस TB, तो Q0 और यहाँ से क्या करना है कि TA माइनस TB को इसके नीचे ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा Q0 अपॉन TA माइनस TB और यहाँ पे 1 अपन हो जाएगा, तो Q0 अपॉन TA माइनस TB दैट मीन्स U हो जाएगा हमारा, बट हमें किसकी वैल्यू चाहिए 1 अपन U। ओके, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सो 1 अपन U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स 1 अपन U इज इक्वल टू, इसमें से क्या हो जाएगा रिमेनिंग टर्म 1 अपन H0 प्लस 1 अपन H3 प्लस ये क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 से लेकर I इज इक्वल टू 3 तक, और ये सिमिलर टर्म रहेगा xi माइनस xi माइनस 1। सिंपली इन टर्म्स में बोलूँ तो ये इक्वेशन कहाँ से आया, ओके, ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो ये इक्वेशन में क्या किया, तो ये इक्वेशन में से u की वैल्यू u को करता बना दिया और u की वैल्यू कहाँ पे पुट कर दी, यहाँ पे पुट कर दी। देखिए ये ओके, Q0 अपॉन TA माइनस TB दैट मीन्स उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं u बराबर 1 अपन u। ओके, सो ये इक्वेशन वहां से आया। नाउ वी कैन नाउ जनरलाइज इक्वेशन 7.71 फॉर nth नंबर ऑफ द स्लैब। अगर हमें ये इक्वेशन को nth नंबर तक लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ओके, तो सिमिलरली सिंपल दैट एज इट इज 1 अपन u 1 अपन H0 प्लस 1 अपन H3 की जगह पे क्या हो जाएगा Hn हो जाएगा, प्लस समेशन फ्रॉम i इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा i इज इक्वल टू nth टर्म तक हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे जो टर्म्स है बाकी का टर्म्स वो क्या हो जाएगा सिमिलर टू एज इट इज xi माइनस xi माइनस 1 अपॉन ki। So this equation is very useful for the calculating heat transfer through composite wall.
separating two fluid streams. Okay, if we know the heat transfer coefficient, then the thickness of slab can be found out, and it is very useful relation for designing furnace. Okay, and from this theory, example was also is asked in exam. Okay, thank you.